कोर्स। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले we all will be getting our aura clean, because whatever energies we will be taking from this class should align with you. हम आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपना ऑरा क्लेंस करेंगे, फिर ये जानेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअल में क्या है, कैसे रीड करते हैं। ठीक है? सो व्हाट यू गाइज हैव टू डू, वी विल बी फॉलोइंग whirling टेक्निक। ठीक है? I will be saying spiral, spiral, spiral. So, what you have to do, you have to visualize white light from your feet is moving in form of spiral. जब मैं स्पाइरल 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 बोलूंगी तो आपको अपने पैरों से सिर तक विजुलाइज करना है, एक व्हाइट लाइट आपके चारों तरफ गोल 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 स्पाइरल की तरह से घूम रही है, और आपके जीवन में जिस जिस परेशानी को आज आप ढूंढने आए हैं कि इसका हल क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हाई एम आई फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, आप उन सभी प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करेंगे वन बाय वन, एंड आई विल से रिलीज। तो आप उसी टाइम उसको क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे। कहां पे रिलीज करेंगे? अर्थ में रिलीज करेंगे। फिर मैं आपको बोलूंगी एक राउंड हम करेंगे, ऐसे 12 राउंड हम करेंगे अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए। ठीक है? वी विल बी परफॉर्मिंग 12 राउंड्स टू क्लेंस अवर ऑरा। ठीक है? मैं स्पाइरल 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 बोलूंगी तो आप व्हाइट लाइट को विजुलाइज करेंगे फ्रॉम फीट टू हेड। ओके? फिर मैं बोलूंगी रिलीज, तो आप रिलीज करेंगे। किस चीज को रिलीज करेंगे? आप अपने ट्रॉमा को, अपनी सफरिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है? क्लियर? 12 प्रॉब्लम्स आप अपनी रिलीज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई 12 प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक ही प्रॉब्लम है, तो यू कैन रिलीज दैट प्रॉब्लम विद फुल इंटेंसिटी। आपको पूरी इंटेंसिटी से उसको रिलीज करनी है, अर्थ में विजुलाइज करना है कि वो प्रॉब्लम आपकी अर्थ में जा रही है। क्लियर? अंडरस्टूड? इज देयर एनी कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? बड़े हम आगे। ग्रेट ग्रेट। चलिए, सो विजुलाइज करेंगे स्पाइरल स्पाइरल, white light is moving in form of spiral around you. White light is forming spiral around you. Whatever problems you have been facing, जिन जिन प्रॉब्लम्स को आप काफी लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम से, आप उसे विजुलाइज करना स्टार्ट करें। स्पाइरल, white light is moving in form of spiral, spiral, गोल 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 तेजी से स्पाइरल ऊपर की तरफ जा रहा है। रिलीज, आप बकायदा अपनी प्रॉब्लम को अर्थ में जाता हुआ विजुलाइज करेंगे। Again, second round, we will be following a spiral from our feet. Kindly form a spiral, spiral, spiral,
White light is moving around you. Your complete body is under spiral. Release. Again, third round. Spiral, spiral. White light is moving around you. It is protecting you. White light is making a shield, protective shield around you, so that all your traumas, all your sufferings for which you have come here should release. It's time to release. Again, next round. White light, white light is moving in form of spiral. Visualize white light is covering entire body. Release. Next round, form a spiral around your body from your feet to head. Your body is now being protected. Release. White light is forming another round. Visualize all your sufferings, traumas are releasing. Recording in progress. Again, form a spiral around your body. Release. Visualize another spiral is forming. Release. Whirl the white light around you. Spiral, spiral, spiral. Release.
spiral, 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 release. Another round, spiral, 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 release. Another round, spiral, release. Last round. Whatever pain, trauma, sufferings, stress, anxiety, whatever you feel like is stopping you, can't allow you to move ahead, just visualize and let it release in earth. Now, slowly and steadily, open your eyes and perform with me. You have to raise your hand like this. अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से अपने ऊपर की जितनी भी ट्रोमैटिक कॉर्ड्स हैं उन्हें लेके अर्थ में डाल देंगे. अब राइट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड से उसको झाड़ेंगे इस तरीके से. जितने भी ट्रोमैटिक कॉर्ड्स हैं उनको आप अर्थ में डाल दें. We will repeat from left hand first. We will take all the traumatic cords and we will release in earth. From our left hand to right hand, we will again hold the traumatic cords and we will release. अब अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से झाड़ेंगे अपने आप को. आई रिपीट, इस तरीके से अपनी तरफ हाथ करेंगे, अपनी तरफ. 1 और राइट हैंड से 2. ठीक है, वापस से करेंगे. पहले लेफ्ट हैंड से 1 फिर 2. ठीक है, क्लियर. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप है ऐसे रिमूव करना है लेफ्ट हैंड से, होल्ड करना है राइट हैंड में, अर्थ में डालना है. Then we will do on our right hand. We will clean our right hand with the traumatic cords. We will take the cords in our hand and we will release in earth. Then from left hand, we will do like this, then this. ठीक है, क्लियर. फिर उसके बाद अपने हैंड्स को रब करेंगे. Whatever pain, suffering, trauma you have been facing, you feel like this is stopping me from growing. मुझे केवल यही चीज या यही चीजें रोकती हैं आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में सोचिए और यूनिवर्स में 30 सेकेंड रब करने के बाद आपको ब्लो करना है. ठीक है, क्लियर. अगेन वी विल बी डूइंग दिस. दिस विल कट अवर अनवांटेड कॉर्ड्स. ठीक है, 1
3, 4, 5, 6, 7, release. Okay. So what we have learned, first we have cleansed our aura. Our aura should be cleansed. Only then we will be able to make space for more energies. And we want only and only positive energies. Yes or no? Chat box में जल्दी से लिख दीजिए क्या आपको positive energies चाहिए. If you want positive energies, then you have to first step is cleanse your aura. Are you understanding? First step is we have to cleanse our aura. Second thing, only one person has replied in chat box. केवल एक ही person मुझे सुन रहे हैं. मीनाक्षी जी केवल सुन रही है मुझे और यहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा मुझे. चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप लोग सुन रहे हैं. If you are present and if you are performing, अगर आप मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हैं ऑरा क्लेंजिंग एंड कॉर्ड कटिंग देन प्लीज. ठीक है, वेरी गुड. नाउ द थिंग इज फर्स्ट स्टेप हमने ऑरा क्लेंस करा. सेकेंड चीज जो हमें करनी है वो है कॉर्ड्स कट. ठीक है, अगर आप आकाशा में जाएंगे और आपकी कॉर्ड्स ऑलरेडी यहां पर जुड़ी हुई हैं, विल यू बी एबल टू गो हायर? will you be able to move to another realm to get experience? क्या आप दूसरे realm में जाके experience ला पाएंगे, downloads ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना आप. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें करना है ऑरा क्लेंस और हमें अनवांटेड कॉर्ड्स को कट कर देना है. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आकाशा के बारे में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए विच लैंग्वेज यू आर मोर कंफर्टेबल, इंग्लिश, हिंदी और बोथ. अशोक जी सिंह आई एम कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश. व्हाट अबाउट रेस्ट? वॉट एवर मैक्सिमम आंसर्स विल कम आई विल बी फॉलोइंग दैट. If you are comfortable with bilingual, please write B. If you are comfortable with only Hindi, only English, then please mention that as well. ठीक है, clear. Mostly people are saying both. हम लोग both language में comfortable है. All right, so I will be speaking both. All right. Now the thing is akasha क्या है? ठीक है मैम, आकाशिक रिकॉर्ड्स हम कैसे ओपन कर सकते हैं, हमें कैसे दिखेगा, कैसे हमें पता चलेगा, हमारे आंसर, हमारे सवालों के आंसर्स हमें कैसे मिलेंगे? कल मैं आप सबको पहली बार आकाशा में प्रैक्टिकली लेकर जाऊंगी. ओके, अंडरस्टूड. बट उससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी? आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू काइंडली टर्न ऑन कैमरा. So the thing is guys, to understand spirituality better, हम अगर स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना चाहें, आकाशा तो बाद में आता है, लेकिन पहले हमें स्पिरिचुअलिटी क्या है. We all are gifted soul. Whosoever is practicing spirituality, वो सब gifted souls है. Why am I a gifted soul, ma'am? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं gifted soul हूं? Guys, in our country, there are more than 130 crore people. 130 करोड़
से ज्यादा लोग हैं, क्या सभी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं? आर एवरीबडी परफॉर्मिंग स्पिरिचुअलिटी? नो। ठीक है, अभी आप देख लीजिए हमारी स्क्रीन पे कितने 40 लोग हैं। ठीक है, सो अगर ये इतनी कॉमन होती, इतनी नॉर्मल चीज होती तो सब कर रहे होते ना। बट आई कैन सी ओनली 40 पीपल। अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो मुझे लगता है ओनली 1 करोड़ पीपल वुड बी परफॉर्मिंग और नॉट मोर देन दैट। है ना, 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो स्पिरिचुअलिटी फॉलो ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि 90% लोग तो क्या है इस टाइम पे, क्लब, पब, ठीक है, या फिर ड्रग्स, अल्कोहल, इसी की थॉट प्रोसेस के अंदर है 90%। For them, the only relaxation and pleasure of life is materialistic things. But the thing is, guys, spirituality जिसके भी हिस्से में आई है, God has given you all a gift so that you can heal yourself. You can heal your family, you can heal your lineage, you can heal your society. आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने परिवार को हील कर सकते हैं, अपनी एंसेस्ट्रल लीनिएज को हील कर सकते हैं, और साथ के साथ आप सोसाइटी को भी हील कर सकते हैं। आपको कौन बनाकर भेजा है? आपको मैसेंजर बनाकर भेजा है। यू ऑल आर मैसेंजर्स, यू ऑल आर चैनल्स ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड तो खुद नहीं आ सकता, तो गॉड किसको भेजेगा? गॉड बनाएगा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। वो रिप्रेजेंटेटिव्स का काम क्या है? केवल और केवल अपने आप को हील करना, अपनी फैमिली को हील करना, अपनी लीनिएज को हील करना, और साथ के साथ सोसाइटी को हील करना। ये गिफ्टेड सोल्स है, ये प्रारब्ध से लेकर आई है कर्मा। आप सब अपना ये जो कर्मा है, आज जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान है, लगाव है, आप देखिए ना, मैनेजर को, अंबानी के मैनेजर को जॉब छोड़ दी। ठीक है, उनकी उसकी जॉब हमारी जॉब की तरह नहीं है, करोड़ों में है उसकी जॉब की सैलरी। He left overnight कि मुझे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी, आई नीड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। Why people are so intrigued towards spirituality? Because spirituality हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे माइंडसेट, हमारे डिसीजन मेकिंग को काम और हाई कर देती है। इट अलाइन अस विद द सोल पर्पस। हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में? व्हाट इज अवर सोल पर्पस? हम इतना भटकते क्यों हैं? इतनी परेशानियों में क्यों आते हैं? इतनी तकलीफ में क्यों आते हैं? इतनी सफरिंग्स क्यों है हमारे साथ? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर अलाइन टू बी डूइंग। आप जो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, अब आप इस जीवन में भटक चुके। आपका जीवन आपको सही ट्रैक पे लेकर ही नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज क्या हो गई हैं? डिप्लीट हो गई। जब आपकी बॉडी की, आपकी सोल की, आपके माइंड की एनर्जीज डिप्लीट हो जाएंगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट हायर थिंग्स। आप हाई लेवल की चीजें जैसे नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी, पीस, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। Why? Because your energies are not aligned. And how our energies are not aligned? Because we don't know our soul purpose. हमें पता ही नहीं है that which soul contract we have signed, what kind of soul purpose to follow. हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या करने आए हैं, हमें पता ही नहीं है। तो थ्रू आकाशिक वी कैन गेट टू नो कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा सोल प्लान क्या है, हमारे प्लान ए बी सी, इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्या क्या हमारे जीवन में चैलेंजेस आएंगे, कैसे कैसे हम उन चैलेंजेस को फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये सब आपको आकाशा में मिलेगा। इन सब के आंसर्स आपको आकाशा में मिलेंगे।
मिलेंगे। आपकी पर्सनालिटी एक्चुअल में कैसी है, किन तरह के लोगों से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, सो दैट यू कैन मीट योर हायर सेल्फ, ये सब मैं आपको बताऊंगी। डोंट वरी एट, कि कैसे अपनी एनर्जीज को आप इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन आप आकाशा में जब जाते हैं तो अपने आप प्रेयर से, एलिमेंट्स से और कोड से, आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं आप? चलिए थोड़ा सा मैं आपको फिर से लेकर जाती हूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप लोगों को मेरी आवाज ये गाइस, कैन यू हियर मी? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गाइस कैन यू हियर मी? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है। सो द थिंग इज, थोड़ा सा आकाशा को और डेप्थ में समझने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं। हम किस तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आए? देखिए, जब हमारा बर्थ होता है ना, उससे पहले हमारी सोल एक कॉन्फ्रेंस करती है, सोल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारी सोल चूज करती है कि हमारा फादर कौन होंगे, मदर कौन होंगे, सिबलिंग्स कौन होंगे, हमारे स्पाउस कौन होंगे, हमारे पार्टनर्स कौन होंगे, हमारे कलीग्स कौन होंगे, हमारे बॉसेस कौन होंगे। वी ऑल डिसाइड इन एडवांस, हम सब एडवांस में डिसाइड करके आते हैं कि हम किन किन लोगों से मिलेंगे। अभी आप लोग इस स्क्रीन पर एक दूसरे को देख रहे हैं, आप लोगों ने भी फॉर टेम्पररी पर्पस, शॉर्ट ड्यूरेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने भी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम एक पॉइंट पर इकट्ठे एक साथ एक दूसरे की एनर्जीज को अलाइन करते हुए हम अपनी स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करें। आपके जीवन में 130 करोड़ लोग हैं दुनिया में, क्या 130 करोड़ लोग सामने आते हैं आपके? आप 130 करोड़ लोगों से मिल रहे हैं? नहीं, राइट। हमारे जीवन में जितने भी लोग होते आते हैं, उन सब से हमारा कर्मा अलाइन होता है। आप सब एक दूसरे के साथ जुड़े इस प्लेटफॉर्म पे, यू ऑल बिलोंग टू अ सोल फैमिली, आप सब एक ही सोल फैमिली का हिस्सा है। सोल कॉन्फ्रेंस हमें समझ में आ गया। अब आता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू? ग्रेट। देखिए, 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारी सोल साइन करके आती है। नंबर 1 इज सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट में हमारी सोल ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आती है डिवाइन के साथ, कि डिवाइन, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप मेरी गाड़ी को चलाओगे, यू विल टेक केयर ऑफ माई लाइफ, यू विल हैंडल माई लाइफ, यू विल हैंडल ऑल द डिसीजंस ऑफ माई लाइफ, आप मेरे जीवन के पालनहार होगे, आप ही मेरे जीवन को चलाओगे। ठीक है, आपको ही मेरे लिए सारी फैसिलिटीज रेडी करनी है, यू हैव टू मेक ऑल द थिंग्स अलाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिवाइन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आए हैं कि भाई डिवाइन को आप प्रमोट करेंगे, डिवाइन आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा,
आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं। प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी क्या प्रमोट कर रहे हैं? नाम जप, राधा 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 राधा, राइट। तो लोग आकर क्या बोल रहे हैं? प्रेमानंद जी आप हमारी किडनी ले लो, राइट, बोल रहे हैं ना कि आप हमारी किडनी ले लो, प्रेमानंद जी आप हमारे घर में आओ एक दिन, हमारा घर क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। कैमरास इतनी इतनी रोड पर 2-2 घंटे लाइनों में लगते हैं उनके वेलकम के लिए, एक झलक देखने के लिए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट। A soul is promoting divine. Now divine is making all the arrangements done for the soul. एक और एग्जाम्पल देती हूँ। रात को 1:30 बजे यूट्यूब पर एक रिंकू वीर जी आते हैं जो अमृत वेला करते हैं। वो रिंकू वीर जी हर वर्ड बोलने के बाद बोलते हैं धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाउ व्हाट गुरु नानक जी विल डू? क्या गुरु नानक जी उनकी लाइफ ले लेंगे? या फिर उनको बोलेंगे बेटे आप इंडिया में तो इतना स्प्रेड कर चुके हो, अब एक काम करो आप फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, स्लोवेनिया जाओ, लंदन जाओ, जर्मनी जाओ, यूएस जाओ, मैं आपके एयरक्राफ्ट का बंदोबस्त करूंगा, आप बस मुझे जाके प्रमोट। Yes or no? So this is sacred contract where people have signed a contract with divine, and divine is promising that I will help you at every single point of time. ठीक है, क्लियर? अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एनीथिंग ऑन प्लेटर, आपको प्लेटर में कुछ भी, अभी जब हम जाएंगे ना प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उसमें आपको यही आइडेंटिफाई कर आना है कि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अभी पहले मैं चारों कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी, फिर मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी, और फिर आप मुझे बताएंगे एज पर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉन्ट्रैक्ट यू हैव साइंड। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट। सेक्युलर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें नथिंग विल बी सर्व्ड ऑन प्लेटर। आपको प्लेटर पे सर्व होके कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड। सब चीजों को आपको बहुत मेहनत से हासिल करना है। एंड द मोमेंट यू अचीव योर टारगेट, गॉड विल गिव यू अ गिफ्ट। वो आपको गिफ्ट देगा। Are you understanding? It's just that you have to work really, really, really hard, wholeheartedly. The moment you do this, God will give you everything. Although nothing will be served on platter. आप देखेंगे मुझे कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिला। मैंने सब कुछ कमाया है अपनी खुद की स्वयं हार्डवर्क से, मेहनत से। So that is secular contract. Third is contract with people. Contract with people in a positive way. अब आपकी लाइफ के अंदर आप ये देखेंगे कि अचानक से कोई पर्सन आया एंड दैट पर्सन हैज कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। आपके जीवन में ऑल ऑफ सडन कोई पर्सन आया एंजल बनकर, ठीक है, और आपकी लाइफ चेंज हो गई। योर लाइफ गॉट 360 डिग्री टर्न। आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गई इन अ पॉजिटिव वे। एंड फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्ट विद पीपल इन अ नेगेटिव वे। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आया जिससे आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। मीन्स आपके जीवन में जो पर्सन आए वो पर्सन ने आपको इतना पेन दिया, इतनी सफरिंग दी, इतना ट्रॉमा दिया, दैट
यू हैव गॉन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, आप अंधेरे से होते हुए कहा चले गए, रोशनी प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ. So you should be thankful for those people, those who have shown you pain. Otherwise, you wouldn't have gone, right? So contract with people में दो तरह के होते हैं. One in a positive way, another is a negative way. एक में इंसान आपको एंजल की तरह आता है, आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है, रास्ता दिखा देता है, बता देता है, और आप चलने लगते हैं तो आपके जीवन में धीरे 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 करके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए. अब आपकी उम्र देखिए, लेट सपोज आपकी उम्र है 20 साल, ठीक है, तो क्या मैं 2 घंटे में आपको बिल्कुल आपके ट्रैक पे ला सकती हूँ? नो. कम से कम आपको लगता है कि मैं 20 साल की हूं, तो कम से कम 2 महीने तो लगेंगे आपकी प्रॉब्लम से आपको निकलने में. येस और नो? सो दिस इज द, हमारी प्रॉब्लम्स थ्रू स्पिरिचुअलिटी ऑन द स्पॉट ठीक नहीं होती, लेकिन जड़ से ठीक हो जाती. थ्रू स्पिरिचुअलिटी वी कैन प्रैक्टिस each and every, we can get each and every answer of our sufferings and events which we have been coming across. हमारे जीवन में जिस भी प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं, अच्छे बुरे, सबका हमें आकाशा में पता चल जाता है. whether that person is useful or that person is using you, आप कोई भी तरह का क्वेश्चन आकाशा में पूछ सकते हैं, जो कि हम कब जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन आकाशा. ओके, क्लियर? चलिए, अब बात आती है कि हम किस तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आए. अभी आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को विजुलाइज करना है, किस तरह का जीवन आप जी रहे हैं. ओके, you have to tell your deity that what kind of life I am living, just tell me. ठीक है, मैं अभी डेटी को बुलाऊंगी, तब आप डेटी से पूछेंगे विच कॉन्ट्रैक्ट हैव आई साइन. अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए, बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज. फोकस करेंगे ब्रेथ पर. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale. Now, just visualize white light is coming from universe and it is entering your third eye. Now, just visualize a star is coming from universe and whosoever deity you follow, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, आप विजुलाइज करेंगे वो इष्ट आ रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स ऑन अ स्टार. Now, just try to hold their hands and visualize a white light ray is coming from their forehead and entering your forehead.
उनके माथे पे से वाइट लाइट आ रही है और आपके माथे में घुस रही है. नाउ जस्ट विजुलाइज ऑन योर फोरहेड. आप फोरहेड पर अपना सारा ध्यान लेकर आएंगे. Bring your entire focus on your forehead, third eye. Now, see, ask. Ask your deity, what soul contract have I signed and with whom? आपको पूछना है अपने डेटी से, मैं किस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर कर आया हूं या आई हूं, कब तक. Now, we will visualize our deity is respectfully going back to their realm on the star. आप विजुलाइज करेंगे आपके डेटी पूरे इज्जत के साथ वापस अपने रेल्म में लौट रहे हैं, आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे. जस्ट फील द एनर्जीज. जस्ट फील. किस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या कोई मैसेजेस आ रहे हैं आपको, क्या फील कर रहे हैं. प्लीज फोकस ऑन दीज एनर्जीज. क्या इस टाइम फियर की एनर्जीज है, क्या रिलैक्सिंग एनर्जीज है, क्या कामिंग एनर्जीज है, क्या इस टाइम पे
आपको कोई एंजाइटी फील हो रही है? क्या आपको पैल्पिटेशंस हो रही है? क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? क्या अब आपको आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पता चल चुका है? तो आपको एक क्लैरिटी आई है, एक कामनेस फील हो रही है? फील करिए what type of emotions are flowing at the moment. I'm giving you 1 minute to think. Slowly and steadily open your eyes. आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे. चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या आंसर मिला, किस तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर आए हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी. क्या फर्स्ट ग्लिम्स मिली? क्या फर्स्ट आपको मैसेज मिला? क्या फर्स्ट थॉट आया? किस तरह के थॉट प्रोसेस चल रहे हैं? आप लिखेंगे, ओनली देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, गाइड यू. देखिए, मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज आया, नींद आ गई, रोना आ रहा है. ठीक है. तो क्या होता है ना, जो सोल बहुत टाइम से सोई नहीं है, उसने बहुत सारा, बहुत इमेंस अपने आप को प्रेशर दे रखा है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो वो सोल पहले, जब भी हम आकाशा में जाएंगे तो कुछ दिनों तक, जब उसकी हीलिंग होएगी तो वो सोएगी. क्योंकि जब तक उसकी सोल को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, उस पर्सन की सोल को, वो आगे डाउनलोड्स ही नहीं कर पाएगी. कुछ सोल्स आकाशा में जाएंगी, हीलिंग्स के दौरान रोएंगी, उनको रोना आएगा विदाउट एनी रीजन. यू विल फील पेन. Why? Because you have hold a lot of pain. आपने, आपकी सोल ने बहुत सारे वूंड्स को कैरी करना, बहुत सारे पेन को कैरी कर रखा है. तो वो पहले क्या करेगी? क्लेंजिंग करेगी. तो वो रोएगी. देखिए, जब भी हम बहुत सारे अनवांटेड इमोशंस को कैरी करेंगे तो हम क्राई करेंगे, हम रोएंगे. ठीक है. और जब हमारे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, हम बहुत इमेंस गहराई तक सोचते हैं, वो भी क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग के आंसर्स खुद दे दे. ठीक है. वी नेवर सी द सेकंड कॉइन.
अगर आपकी जीवन में आपने दूसरे का पहलू ना देखा, ना सुना, ना समझा, और अपने दिमाग से, अपने ही अनुभव से, अपने ही परसेप्शन नोशन से अगर आपने जजमेंट बनाए हैं, तो आपकी सोल पहले इमेंस थॉट्स को विजुलाइज करेगी, उसका ब्रेन शांत ही नहीं होगा। हीलिंग के दौरान वो इमेंस मल्टीपल थॉट्स को लाएगी, ताकि उसके थॉट्स के थ्रू उसकी क्लेंजिंग करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमेंस ली है, उसने मांगी भी नहीं और आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी है, तो आप जब आकाशा में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी बॉडी में पेन, हर जगह आपको पेन हुएगा। जब हम जिम जाते हैं तो हमारे हर जगह दर्द होते हैं ना, क्यों? क्योंकि जहां जहां भी हमारे है ना फैट्स हैं, वहां पर लिगामेंट्स क्या होंगे? टीयर होंगे। लिगामेंट टीयर होते हैं ना, ताकि उसको वापस से रिफ्रेम कर सके। तो उसी तरीके से जब भी आप आकाशा में जाएंगे तो पहले आपकी मैं क्लेंजिंग करूंगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले, सबसे पहला स्टेप क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आई टॉट यू how to clean the aura. Second thing, how to remove unwanted thoughts. Third thing, we have learned how to, which soul contract we have signed. फटाफट से मुझे लिख दीजिए आपको क्या आंसर मिला, कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर कर आए। और किसी को अगर आंसर नहीं मिला है तो वो अपना हैंड रेस करे, मैं डी कोड करूंगी, मैं बताऊंगी आप कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। रेज योर हैंड मीन्स इमोटिकॉन वाला हैंड। क्षमा करीमी जी, कैमरा ऑन करिए आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट समझ ही नहीं आए। दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि आपकी एनर्जीज अभी अलाइन ही नहीं है। आपको नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी, रुतबा, पैसा, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य अट्रैक्ट करने में दिक्कतें आती है। यस और नो? जिन्होंने हैंड रेस करे हैं, आप सभी को बहुत मेहनत करते हैं, आप दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर अ प्योर हार्टेड सोल, लेकिन आप कभी वो चीज को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपकी एज पर हर्ट्स एनर्जीज बहुत लो है। आपको हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करना है, आपको अपने चक्रास को स्ट्रेंथन करना है, आपके एंजल्स के साथ आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक आपके एंजल्स के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स अलाइन नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो आपको जो मैसेजेस दे रहे हैं वो कभी आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप वो डिसीजंस ले ही नहीं पाएंगे, आप गलत सलत डिसीजंस लेके भटकते रहेंगे। लेकिन आप अपने जो सोल पर्पस, जो सोल प्लान को पूरा करने आए हैं, वो कभी भी नहीं कर पाए। आप समझना चाहते हैं देसी भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर? चलिए मैं अभी आपको समझाती हूँ। Is there anybody who is present in the class who knows any language apart from Hindi and English? आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा आती है? अब सब अपने हैंड डाउन कर लीजिए, सिर्फ वही रेस करेंगे जिनको आती है।
राजेश्वरी जी, कहां पर हैं आप? आपने हैंड ही नहीं रेज किया, आप चैट बॉक्स में लिख रही हैं। फटाफट से हैंड रेज कर दीजिए जिसको दूसरी लैंग्वेज आती है। विकास वर्मा जी, प्रवीण जी, संगीता जी, आप लोगों को दूसरी लैंग्वेज आती है अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश? चलिए संगीता जी से पूछते हैं। संगीता जी, आपको अपनी भाषा में अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश बोलना है कि कैसे हो आप। मुझसे पूछना है, मैम कैसे हो आप। நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கோ? वेरी गुड। महेश जी, आप बताइए, मैम कैसे हो आप। मैडम તમે કેમ છો? प्रवीण जी, थैंक यू महेश जी, थैंक यू संगीता जी। प्रवीण जी, मॅडम तुम्ही कसे आहात? थैंक यू। विकास वर्मा जी, मैम। अभी ये जो चार लोगों ने ये बोला कि मैम आप कैसे हो, क्या आप सबको समझ में आ गई? नागेश जी, क्या आपको समझ में आ गई इन चारों ने क्या बोला? अभी माइक को ऑन करिए। हाँ मैम। आपको सारी अंदाज लैंग्वेज नहीं नहीं, अंदाजन से समझ में आता है। अंदाजों से नहीं, जो संगीता जी ने बोला उसे रिपीट करिए। जो महेश जी ने बोला या जो विकास जी ने बोला उसे रिपीट कर पाएंगे आप? नहीं। क्यों? आपको तो आ गई थी समझ में। मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ। यूनिवर्स अपनी खुद की भाषा में, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्स साइन लैंग्वेज, में आपसे कंटिन्यूअसली बातें कर रहा है। राजेश्वरी जी स्पीकिंग इन जापानीज। अभी कोई मैंड्रिन से है, कोई स्पेनिश, फ्रेंच, प्लीज गो अहेड। चलिए, सो यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू ईच एंड एवरी सोल, क्योंकि आपको किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया ना। आपकी परालौकिक माँ, आपके परालौकिक पिता जो हैं, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या उनको बनाकर आपको यहाँ पर छोड़ देना है? भटकते रहो बेटे। इज दिस द पर्पस ऑफ लाइफ? नो, नॉट एट ऑल। Universe is constantly talking to you in its own universal sign language. वो आपको बता रहा है ये डिसीजन लो, ये डिसीजन मत लो, ये करो, ये मत करो, लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपको तो उसकी भाषा ही नहीं आती समझ में। आप तो उसके साथ अलाइन ही नहीं हुए हो। और देसी भाषा में समझना है तो देसी भाषा में समझ। क्या जितने लोग बांके बिहारी वृंदावन जाते हैं सब राधा रानी और कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं? यस और नो? जिसको कनेक्ट होना होता है ना गाइज, वो धक्के नहीं मारता, वो दूर से खड़े होकर भी बाके बिहारी से अपनी आई कांटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसे पता है मेरा बिहारी मुझे देख रहा, सुन रहा है। तो क्या हमारी एनर्जीज इतनी आज अलाइन है कि हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ पाए? इसीलिए हमारे डिसीजंस रॉन्ग है, इसीलिए हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियों को घर ले लेते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को स्टडी करेंगे तो क्या आप काले दिल के इंसान हैं? क्या आप क्राइम करते हैं? क्या आप दूसरों का दिल दुखाते हैं 24 घंटे? लेकिन फिर भी हमारे साथ हम अपनी गोल को नहीं देख पा रहे। व्हाट इज अवर सोल पर्पस? हमें पता ही नहीं है। व्हाट आर वी डूइंग ऑन दिस अर्थ? क्या करने आए हैं हम, क्या कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते? लेकिन ये अंबानी कैसे कर लेते हैं?
कैसे कर लेते हैं? इनका वांतारा प्रोजेक्ट भी आ रहा है, इनकी ये यूनिवर्सिटी, इनकी आर्ट यूनिवर्सिटी, इनका आईपीएल भी आ रहा है, इनका ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये बुर्ज खलीफा भी खरीद रहे हैं, ये भी खरीद रहे हैं। हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? क्या वो प्लूटो से आए हैं? क्या वो जुपिटर से आए हैं? नो, बट दे आर गेटिंग देयर हीलिंग्स डन एवरी डे। रोज अपने आप को हील करते हैं वो। रोज मीन्स रोज। क्या आप करते हो अपने आप को रोज हील? क्या आपको पता है हाउ यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू? क्या आपको पता है यूनिवर्स आपको कैसे समझा रहा है, कैसे बात कर रहा है? कभी आपने दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करी यूनिवर्स से? ईमानदारी से बताइए, क्या हम जो वर्शिप करते हैं उसमें हमेशा डिमांड रखते हैं? यही रीजन, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, because we don't know right way of how to align our energies with angels. और समझना है? चलिए अभी और हम आपको समझाएंगे। हम कहाँ हैं? हम अर्थ पे। We are on earth and earth is known as third dimension. क्या आप जानते हैं इससे नीचे क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड डिमेंशन। फर्स्ट एंड सेकंड डिमेंशन में नर्क, पाताल, डिमोनिक डीमन एनर्जीज। फोर्थ रेल थोड़ी देर में समझाऊंगी। फिफ्थ रेल में क्या है? फिफ्थ रेल में है हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मास्टर्स, गुरु, ये वाली एनर्जी जो हमें देने के लिए बैठी है। क्या? नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी। अलक्ष्मी नहीं, सुलक्ष्मी। वो लक्ष्मी जो आपके भंडार भरेगी। वो लक्ष्मी नहीं है जो आती है और चली जाती है, आती है और हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों में निकल जाती है। कभी इसकी बीमारी, कभी इसकी तकलीफ, कभी इस दर्द, कभी इस पीड़ा में निकल जाती है। सो द थिंग इज, जो फिफ्थ रेल्म की एनर्जीज है वो आती है और टिक जाती है। लेकिन मैम हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। Why? Because from third realm to fifth realm there is a realm called fourth realm in between. लेकिन जैसे हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, हम कभी भी फिफ्थ realm की एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगा। हम सबसे पहले डरते हैं, घबराते हैं। फियर, एंजाइटी, ट्रॉमा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। ईमानदारी से बताइएगा, कोई भी सिचुएशन आ जाए, पहला थॉट आपके क्या आता है? क्या आप फर्स्ट सेकंड रेल्म की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं या फिफ्थ रेल्म की एनर्जीज को? लिख दीजिए 1, 2 या 5। गीता जी, नीता जी, कीर्ति जी, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? सौरभ जी, सुजाता जी, शमा जी, राजेश्वरी जी, रीवा जी, सौरभ जी, प्लीज रिप्लाई। निशा जी, हम मोस्टली स्टूडेंट्स ने ईमानदारी से बोला कि हम अट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेकंड रेल्म की एनर्जीज।
व्हाई? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड रेल्म और थर्ड रेल्म में कोई गैप नहीं है, इसीलिए एक आम इंसान सबसे पहले अट्रैक्ट करता है फर्स्ट सेकंड रेल्म की एनर्जी। लेकिन हमारा जन्म हुआ किस लिए है? Why are we sent on this earth? We are not sent on this earth to create villas, buy luxurious cars, buy designer bags, get ourselves with the मेकअप आर्टिस्ट। हम सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ खाने पीने पेट भर के सोने के लिए और मरने के लिए नहीं आए हैं। जो 90% दुनिया आज यही कर रही है, अपना पेट पालने के लिए पूरा जीवन लगा देती है। यस और नो? लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, people who are getting themselves healed, people those who are aligned with their higher self, what soul purpose they are supposed to be fulfilling in this lifetime, किस तरह के सोल वुंड्स को आप ठीक करने आए, रिपेयर करने। अगर आपको ये समझ में आ जाता है, आप जान जाते हैं, and how we will get to know? When we will be going in Akasha, and when we will be asking questions, when we will be getting ourselves healed, we will start aligning with the fifth realm energies. हमारा ultimate goal fifth realm की energies को attract करना है। But मैम, कहीं ना कहीं तो मैंने सुना था कि 7 realms होते हैं, बट आपने तो बोल दिया कि अल्टीमेट गोल इज फिफ्थ रेल्म। थोड़ा सा ये सिक्स्थ और सेवंथ रेल्म के बारे में भी समझा दोगे आप? चलिए समझते हैं। सिक्स्थ रेल्म बाद में समझाऊंगी। फोर्थ रेल्म और सिक्स्थ रेल्म, हाँ जी, फोर्थ रेल्म और सिक्स्थ रेल्म बाद में समझाऊंगी। अब आते हैं सेवंथ रेल्म। हमारे एंजल्स, archangels, ascended masters, ancestors, gurus, angels are in fifth realm. What about God and Goddess? What about divine energies? They are in seventh realm. हमारी divine energy किस फॉर्म में है मैम? It is in form of feminine. डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, शक्ति, वो विराजमान है सेवंथ रेल्म में। मैम थोड़ा सा बता दो कि ये शक्ति क्या होती है। सुनिए, जब भी आप कोई पौधा लगाने जाते हैं, कोई बीज बोते हैं आप, तो कितने किलो गुड़ और कितने किलो चीनी लेकर जाते हो आप? जल्दी से बता दो। आप बीज बोने गए और क्या चीनी और क्या गुड़ या फिर बूरा लेकर जाते हो आप? आप बोल रहे हो नहीं। तो फल कैसे मीठा उगता है? ये फल कैसे मीठा उगता है? कौन चला रहा है? शक्ति, डिवाइन एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो आप लगा दोगे अपने ऊपर तो कॉन्सेप्ट साइंस का कि मैम साइंस की वजह से हम आए हैं, हम तो साइंस की वजह से आए हैं मैम। तो इस पौधे में कैसे आ गई साइंस? ये पौधा कैसे मीठा उग गया? इससे फल कैसे मीठा निकल गया? क्योंकि आप तो कोई चीनी नहीं डालेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप तो चलो जाते हो नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए आप जाते हैं, पैसे कमाते हैं, रोटी खाते हैं,
क्या जानवर भी जाता है? क्या जानवर भी जाता है? उसको कौन खिला रहा है रोटी? कोई तो है जो चला रहा है ये सृष्टि। और हम कभी इसने बोल दिया तो दुखी, कभी उसने बोल दिया तो दुखी। तो मेन काम करने आए हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ? टू अंडरस्टैंड what kind of soul wounds we are carrying and how can we heal these souls so that we can upgrade ourselves to fifth realm. या इसकी टीज करना, इसका मजाक उड़ाना, इसकी बात को देखकर रोना, उससे जलन करना, उससे ईर्ष्या करना, इसको देखकर लस्ट की फीलिंग आना, इसको देखकर कुछ भी ऐसा फील होना अनप्रोडक्टिव, ये करने नहीं आए हैं हम। जबरदस्ती टेंशन लेने नहीं आए हैं हम। बीमारियां लेने नहीं आए हैं हम। जो 90% दुनिया यही कर रही है, स्ट्रेस ले लेकर, बोझे ले लेकर बीमारियां। if there is anybody from science background here, I just need to talk to that person. Is there anybody who is from science background? Please raise your hand. I need to speak to that person to make you guys clear one concept. Nobody is from science background. विकास जी आपने रेज हैंड कर रखा है, आर यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? हार्डली मैटर्स। प्रवीण जी आप साइंस बैकग्राउंड से? हाँ जी मैम, फोर्थ टाइम। क्या कोई इंसान कैंसर रेडी के खाने से लेकर आता है? रेडी के इधर मतलब? उधर का खाना, मतलब स्टॉल्स या फिर है ना कि कहते ठेले पर जो खाना मिलता है, क्या वो खाकर किसी को कैंसर होता है? वो खतर भी होता है, वो एक कारण है। यस, ये तो कारण है ही नहीं। ये बॉटल देख रहे हैं? ये बॉटल में कितनी स्पेस खाली है, ठीक है? अभी इस बॉटल के पास इतना सा पेन है। जब ये पूरा भर जाएगा बॉटल, अगर हम ये हमारे शरीर में पूरा पेन भर लेंगे तो ये दीमक की तरह हर एक सेल को खा जाएगा। कौन? पेन। कौन? ट्रॉमा। कौन? सफरिंग। कौन? प्रॉब्लम्स। ये इसके अंदर जो सोल है उस पे तो वैसे भी बहुत सारे वुंड्स हैं, अब ये बॉडी के ऊपर भी लग गए। ये ही 90% लोग कर रहे हैं। लेकिन only a few are understanding the importance of healings and get themselves healed. वो रोज अपना ऑरा स्कैन करते हैं, रोज अपना ऑरा क्लेंस करते हैं, वो रोज अपनी कॉर्ड कटिंग करते हैं, वो रोज अपने आप को हील करते हैं। क्योंकि ये मत भूलिए कि आप कलयुग में आए, and the flavor of this Kalyug is trauma and suffering. But if any person is practicing spirituality, that person will get a chance to heal themselves, their family, society and lineage. क्या आप वो पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि कल मैं आपको लेकर जाऊंगी पहली बार आकाशा में। क्या आप मेरे साथ हीलिंग प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? इफ यस, देन प्लीज नोट डाउन आपको क्या लेकर आना। आपको लेकर आना है सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडल और अ ज्योत। आपको कैंडल या फिर ज्योत लेकर आनी है।
ठीक है, आपको लेकर आना है एक क्लियर ग्लास, ठीक है, क्लियर ग्लास के अंदर वाटर, पीने का पानी। आपको लेकर आना है एक क्रिस्टल। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो यू कैन ब्रिंग अ अर्दन पॉट। आप एक मिट्टी का दिया ला सकते हैं, एन अर्दन पॉट। आपके पास मिट्टी का दिया भी नहीं है तो आप केवल मिट्टी ले आए, सॉइल, अपने गमले की मिट्टी ले आए, सॉइल ही ले आए। ऑलराइट, अंडरस्टूड। आपके पास फायर एलिमेंट, जोत या फिर कैंडल, एनी कलर कैंडल, नो कंपल्शन इन कैंडल। एक क्लियर ग्लास वाटर होना चाहिए वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक आपके पास मिट्टी का दिया या क्रिस्टल होना चाहिए अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक आपके पास इंसेंस स्टिक होनी चाहिए, ठीक है, आपके एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने। और हम जाएंगे सेक्रेड स्पेस में, sacred space to get our a few answers to be known। कुछ सवालों के जवाब लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो पहला सवाल होगा व्हाट इज माय सोल पर्पस, मैं क्या करने आया हूं या क्या करने आई हूं। सेकंड क्वेश्चन, मेरा सोल एनिमल क्या है, व्हाट इज माय सोल एनिमल। एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी फ्री विल क्वेश्चन। आपको जो पूछना है आप वो पूछ सकते हैं। आई रिपीट, आपको कैंडल या जोत लानी है फायर एलिमेंट के लिए, आपको लेकर आना है इंसेंस स्टिक एयर एलिमेंट के लिए, यानी कि धूप, ठीक है, राइट। और साथ के साथ मैं कल आप लोगों को सिखाने जा रही हूं एक और स्ट्रैटेजी टू क्लेंस योरसेल्फ। अगर आप, जैसे जब हम आकाशा में जाएंगे, जब ये कोर्स करेंगे, तो आप लोगों को ना सर्टेन प्रैक्टिसेस रेगुलरली करनी है, जैसे ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, शील्डिंग। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको रोज नियमित तौर पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप हीलर बनना चाहते हैं तो आपको ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, शील्डिंग ये करना है। नहीं अगर आप करते हैं तो आप सबसे पहली बात हील कभी नहीं हो सकते, चाहे कोई भी मोडालिटी पढ़ ले आप। ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, शील्डिंग अगर आपने नहीं करी है प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से तो आप हीलर नहीं बन सकते, नंबर 1। नंबर 2, आपको डाउनलोड्स ही नहीं होंगे, ठीक है। आप जितना मर्जी 1 करोड़ का कोर्स खरीद ले, आपको डाउनलोड्स ही नहीं होंगे। प्रॉपर इसकी चैनलाइजिंग होती है। गुरु विल ओपन योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपका कल सबकॉन्शियस माइंड ओपन करूं, ठीक है, सो दैट यू कैन अलाइन विद द एनर्जी। क्या कभी किसी गुरु ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करके अलाइन किया है, यस और नो। Only 1 or 2 people are speaking. What about rest? Rajeshri ji, now you have also stopped replying. Amazing, amazing, amazing. So the thing is, जिनको लगता है यस, तो उनको हायर एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में कभी दिक्कत ही नहीं आती, और जिनके आंसर्स नो है उन्हें हायर एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में हमेशा दिक्कत। Are you understanding? So the thing is,
हमें लेकर आने ये 4 एलिमेंट, 5th मैं बनूंगी आपके लिए। यस, ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, शील्डिंग, ये हम लेवल 2 में सीखेंगे, हाउ टू डू ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, शील्डिंग। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम कैसे अपने आप को तुरंत, दिन में 4 है आपके क्लाइंट्स या फिर 10 क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है, तो क्या आप 3-3 घंटे का प्रोसेस हर क्लाइंट के लिए कर पाएंगे? तो व्हाट आर द एडवांस टेक्निक्स दैट आई विल बी शेयरिंग लेटर, बट कल मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम आकाशा में लेकर जाऊं थ्रू दीज 5 एलिमेंट्स। जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो 2 एडिशनल टायर्स लगाते हैं ना आप, तो वो 2 एडिशनल टायर्स की एनर्जीज मैं आपको कल ट्रांसफर करूंगी, ताकि आप एटलीस्ट जाके महसूस करें, यू कैन फील। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ द थिंग इज, 5th element will be me, sound element। ठीक है, क्लियर? अब हम एक प्रोसेस करें, ठीक है? वो प्रोसेस है आपका हाउ टू अलाइन विद हायर एनर्जीज। आप सभी के चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हम अपनी एनर्जीज को हायर एनर्जीज के साथ किस तरीके से अलाइन कर सकते, ठीक है? अभी मैं आपको एक एंजल के साथ हीलिंग प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? तो आपको आज से लेकर कल तक, यानी कि 24 आवर्स तक एक पर्टिकुलर हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज फील हो, ठीक है? आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, बैक शुड बी स्ट्रेट, वी विल फोकस ऑन आवर ब्रेथ। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। मैं आप सभी से आपके दोनों हैंड्स को कैमरा के सामने इस तरीके से ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करूं। यू हैव टू रेज योर हैंड्स। कैमरा जो ऑन करेगा वही उन एनर्जीज को ले पाएगा गाइस। बिना कैमरा ऑन करे यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एनर्जीज। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है? क्लियर? कैमरा ऑन करेंगे तभी तो मैं कोडिंग कर पाऊंगी आपके हैंड्स पे, आपकी नेक पे और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। जिनका कैमरा ऑफ है मैं कहाँ से करूंगी? मैं कहीं भी कर रही हूँ, वो तो कहीं और देख रहे हैं, मुझे क्या पता। प्लीज फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड अलाइन करवाना है तो। ओके, चलिए। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि,
दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि. Now keep your hands behind your neck. मतलब आपको नेक पे अब हाथ रखना है इस तरीके से. Okay? You have to keep your hands on your neck. आपके नेक पर. ठीक है, जितने भी हमारे इमोशंस, मेमोरीज स्टोर्स होते हैं, सिर पे नहीं रखना, गर्दन पे रखना है. गर्दन पे, जहां पर वो हड्डी बाहर निकली हुई है ना आपके, वहां पर रखना है आपको. सोमा, 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 सोमा. अब आप अपने फोरहेड पर हाथ रखें. यू हैव टू कीप योर हैंड्स ऑन फोरहेड. ठीक है, पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड.
अनूक, 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 अनूक। Feel the sensations. सेंसेशंस को फील करिए। कहाँ कहाँ पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, विजुलाइज करिए। अपने फोरहेड पर डाउनलोड्स को, आंसर्स को मांगिए। मुझे दिखाओ, यूनिवर्स शो मी वेयर आई एम गेटिंग द सेंसेशंस। अब आप अपनी टंग को अपर पैलेट पर टच करेंगे। आई रिपीट, आप अपनी टंग को अपर पैलेट के ऊपर वाले जबड़े पर आपको अपनी टंग को होल्ड करना है और सांस को रोक के रखना है। रिलीज, काम योरसेल्फ। जो एनर्जीज मैंने अभी ट्रांसफर करी हैं, हाफ आवर तक ना कुछ खाना है और ना ही वॉशरूम जाना है। You can't go to washroom for next half an hour and you cannot eat anything because food gives us energy and मैं जो energies आपको अभी दी हूं, मैं नहीं चाहती कि आप कोई और energies के साथ उन्हें mingle करें। Alright? तो आपको वॉशरूम नहीं जाना है क्योंकि वॉशरूम की एनर्जीज हमारी घर की एनर्जीज के साथ डिफरेंट होती हैं। ठीक है,
Second thing, you can't eat anything. All right? ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। और कल मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ ड्राई बाथ एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आकाशा। ओके, सो बी रेडी। ऑलराइट, चलिए, ओके, बाय, आई विल सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।